Hi everyone, welcome to our channel lawdigest.in. My name is Chetan and आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं PU LLB 2023 का जो पेपर था। तो 3 ईयर आपका जो PU LLB 3 ईयर एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें जो भी मैथ्स एंड रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज के सेशन में सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो एनालाइज करेंगे कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा ये। तो लेट अस स्टार्ट। एंड यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PU LLB 2024 या फिर आप और भी किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज PU LLB तो आपका 2000 जून में एग्जाम है, इट्स वेरी नियर। और भी कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम रहता है, लेवल भी लगभग सेम रहता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, लॉ एंट्रेंस एग्जाम का। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And yes, a brief about myself. I have written various competitive examinations like UGC NET, SSC CGL, banking, etc. I also have a work ex of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. So now let us directly start with the video. And if you want to get any information about the courses which we offer and about the different exams, you can visit the website www.lawdigest.in. So question number 41 to 60 in the paper. So there were in total 100 questions in the exam. So 41 to 60, these 20 questions were from logical reasoning and maths. Okay, so we'll start with the first question. First question, you can say 41st question, whatever. So if E is equal to 5 and hotel is coded as 12, so basically this is a question of coding decoding, where they are telling you that E is equal to 5, the value of E is 5 and the value of this word is 12. Then you have to tell how lamb, what will be the value of lamb? Lamb will be equal to what value? Now here we need to find a logic. This is a logical reasoning question from coding decoding. So if E is equal to 5, so they have told you E is equal to 5 and the place value. So if you count A, B, C, D, E is the 5th letter. So if I go by that logic, that is the only logic I can start off with. Okay, so H is the 8th alphabet, 8th letter, O is the 15th one, T is the 20th one. So you can remember, you should remember the place values of all the letters, okay, from 1 A to Z, 1 to 26. So you should know their place value from the start and from the end, both ways. Then E is equal to 5 and L is the 12th letter. Now, how come these numbers become 12? It's very difficult to think of that. Let us start with a very basic thing. Let us add them up. So one possible logic you would feel, sir, let us add the digits or let us add the numbers, whatever. Digits को add करके भी check कर सकते हैं, numbers को भी add करके check कर सकते हैं. If you add the digits, standalone digits like 8, 1, 5, 2, so it would be more than 12. So that might not be the logic. Now let us add these numbers separately, like 8 plus 15 plus 20 plus 5 plus 12. So this will be what? 8 plus 12 is 20. 15 plus 5 is 20 and another 20. So the total of all these numbers comes out to be 60. But we are given the code as 12. But if you notice very carefully, there are 5 letters. 1, 2, 3, 4, 5. And if you divide this sum, if you divide the sum by the number of letters, you will get 12. So this seems to be a most possible logic. So if I apply the same logic on the word lamb, we can try to apply the same logic. So lamb. Okay, now the place value of L is 12, A is 1, M is 13, B is 2. Add them up. So 12 plus 1, 13 plus 13, 26 plus 2, 28. And we have to divide by the number of letters. There are 4 letters in this word. So 28 divided by 4, the answer comes out to be 7. So the correct answer is option number A, 7. So I hope you must have understood the question. Okay, moving on to the next question, question number 42. One day, Tim left the home and cycled for 10 kilometers southwards. So we'll start by line. So this seems to be a question of direction test, okay, from logical reasoning. So Tim started, he moved downwards. So let's suppose this is the starting point. He moved 10 kilometers south. He moves 10 kilometers south. Let us read further. He turned right and cycled 5 kilometers. Now what will be the right? Because he is facing south. So what will be his right? Right will be the west direction. So he turned right, cycled for 5 kilometers. Now read further. Then he again turned right and cycled 10 kilometers. Now he is facing west. His right will be north. So he now cycled 10 kilometers. He turned right, cycled
again 10 kilometer. Now read further. And turned left and cycled. He again turned left and cycled 10 kilometers. So left would be west because he is facing north. Now the question is, so this will be the diagram: 10 kilometers south, then west, then north, then west. Now the question asks you, how many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? Okay. Now from this point, from his final point, he has to reach the starting point, this point. So basically this distance. They are asking you to find this distance. So this is 10, we know that, and this distance is what? 5. So total distance he has to travel is 10 plus 5 is equal to 15 kilometer to reach back to his home. So the correct answer will be option number B, 15 kilometer. So basic question. इन दिस क्वेश्चन हमें पाइथागोरस भी यूज नहीं करना पड़ा, बहुत इजीली बेसिक क्वेश्चन हो गया, बिकॉज डायरेक्शंस में कई बार आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ता है. सो लेवल बहुत अभी तक मुश्किल नहीं दिख रहा मुझे, ना 41st में बहुत मुश्किल लेवल था, नहीं 41st का लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी था. देखो 41st में ये प्रॉब्लम थी कि लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी था कि आपको सोचना था, बट 42nd इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. जेसी वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. अब अगेन ये भी एक डायरेक्शन का क्वेश्चन लग रहा है मुझे. तो सबसे पहले 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है. सबसे पहले 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. देन फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ. अब नीचे आ गया 6 किलोमीटर. फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ. So let's say he is now at this point. So this is 6 kilometer, this is 4 kilometer, because total is 10. Then he walks 3 kilometers towards east. Now what is east? East is there. So he walks 3 kilometers towards east. Then it further says how far and in which direction is he with reference to his starting point. So distance also, distance भी पूछ रहे हैं आपसे, डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं. तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैं अगर O नाम दे दूं, और एंडिंग पॉइंट इसका ये है, लास्ट पॉइंट है A. तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं दिस OA. ये OA की वैल्यू कितनी है इन किलोमीटर्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है ये डायरेक्शन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट से खड़े होके इस पॉइंट पे, अज्यूम करो कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो और आप A की तरफ देख रहे हो, तो डायरेक्शन कौन सी है? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? तो यू नो द बेसिक डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. हिज डायरेक्शन इज लाइक दिस. ही इज फेसिंग, मतलब द एंड पॉइंट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट. तो डायरेक्शन तो होगी नॉर्थ ईस्ट. और अगर आप ध्यान से देखोगे नॉर्थ ईस्ट का आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आप आंसर डायरेक्टली बी ऑप्शन मार्क कर सकते हो. और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से. तो इफ यू नोटिस, अगर इस पॉइंट को मैं बी नाम दे दूं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है. यहाँ पे ये बी जो एंगल है 90 डिग्री का है. तो हमारे पास बेस है 3, हमारे पास परपेंडिकुलर है 4, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज की लेंथ OA. तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. So hypotenuse square would be equal to 9 plus 16 is equal to 25. तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा हमको. So length of OA would be under root of 25 which is 5 किलोमीटर. So 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया और डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट. सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है. तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, पाइथागोरस के थ्रू आपको करना था. ठीक है, मूविंग ऑन टू द 44th क्वेश्चन. If India is written as 914491, तो ये आपका कोडिंग का क्वेश्चन है. Then Delhi will be written as what? तो अगर ध्यान से देखेंगे, इंडिया जो है दिस वर्ड, मतलब इसमें हम कैसे लिख रहे हैं इसको? 914491. एंड इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, मैंने बहुत ध्यान से इसको अलग अलग कर दिया, मतलब बिकॉज आई नो प्लेस वैल्यू ऑफ I इज 9, प्लेस वैल्यू ऑफ N इज 14. प्लेस वैल्यू मतलब I is the 9th letter, N is the 14th letter in the English alphabet, D is the 4th letter. तो सभी की प्लेस वैल्यूज लिखी हुई हैं as it is, कुछ भी नहीं किया. तो सिमिलरली हम दिल्ली जो है इसमें सभी वर्ड्स की प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं और उनको कंबाइन कर देंगे. ठीक है, तो D is the 4th letter, E is the 5th letter, L is 12th, H is 8, I is 9. तो 4 5 1 2 8 9 which is option B. So ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब. तो आई थिंक सिंपल इनफ क्वेश्चन था. यहाँ पे तो कुछ ज्यादा कुछ था भी नहीं, मतलब एज इन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था वहां पे थोड़ा सा लॉजिक था, यहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेस वैल्यूज लिखी हुई हैं. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. आई होप सेशन आप एंजॉय कर रहे होगे, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा. तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग, और डू कमेंट सेशन के नीचे आपको कैसा लगा, योर फीडबैक.
your suggestions. Question 45. A number consists of 3 digits whose sum is 10. एक 3 डिजिट नंबर है, मान लेते हैं नंबर है आपका, मतलब नंबर मान लेते हैं 3 डिजिट्स हैं आपकी, जो द नंबर हैज 3 डिजिट्स x, y and z मान लेते हैं, इनका सम आपको दे रखा है 10. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10. अब ये 3 डिजिट नंबर है तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस, 100x प्लस 10y प्लस z. इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दिस इज द 100th प्लेस, दिस इज द 10th प्लेस, दिस इज द 1st प्लेस. ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? द मिडल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट्स. ठीक है, मिडल डिजिट कौन सी है यहाँ पे? y. तो मिडल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट्स. सो y इज इक्वल टू x प्लस z. तो ये सारी इक्वेशन मैं फॉर्म कर रहा हूँ, इक्वेशन के थ्रू आप कर सकते हैं इसको इजीली. ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन में हम कई बार हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को. देन आगे लिखा है, एंड द नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 99 इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड. अगर इसकी डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें तो नंबर 99 से इंक्रीज हो जाएगा. अब रिवर्स करोगे तो क्या होगा? अगर इस नंबर को मैं रिवर्स कर दूंगा, मेरी बात समझना, 1 2 3 का रिवर्स क्या होता है? 3 2 1. किसी भी नंबर का रिवर्स आपको पता है क्या होता है? तो अगर इस नंबर को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? जो आपका यूनिट डिजिट है वो आपकी 100 डिजिट बन जाएगी. ठीक है, तो 100z, मिडिल डिजिट आपकी सेम रहेगी जब आप रिवर्स भी करोगे, सो 10y, और जो आपकी 100 डिजिट है वो आपकी 1st डिजिट बन जाएगी, सो प्लस x. अब ये बोल रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस 99 है. ठीक है, यही लिखा है, डिफरेंस कितना है? 99. और चेंज करने के बाद जो है क्या लिखा है? द नंबर विल बी इंक्रीज्ड, सो दिस इज द ग्रेटर नंबर. ये जो नंबर है ये ग्रेटर है, बिकॉज लिखा है इंक्रीज करने के बाद नंबर 99 से इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे डिफरेंस लेना है, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 99. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो बेसिकली दिस इज लाइक 100z प्लस 10y प्लस x, ये x होगा. ठीक है, दिस इज x प्लस x माइनस द अबव नंबर, ओरिजिनल नंबर 100x प्लस 10y प्लस z. इनका डिफरेंस कितना है? 99. अब आप इनका डिफरेंस ले सकते हैं, डिफरेंस निकालना सबको आता है. कैसे निकालेंगे? तो 100z माइनस z, ये माइनस जब ओपन करोगे ब्रैकेट तो सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, तो दिस विल बी 99z. 10y से 10y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? माइनस 99x. 99x कैसे? x माइनस 100x, एंड दिस इज इक्वल टू 99. अब यहां से 99 कॉमन ले लोगे तो तीनों टर्म्स में से 99 एलिमिनेट हो जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट? z माइनस x इज इक्वल टू 1. सब जगह से 99 हट जाएगा तो 99 से सबको डिवाइड कर दोगे, सो x z माइनस x इज इक्वल टू 1. सो यू हैव दिस इक्वेशन नाउ एंड यू हैव दिस इक्वेशन, these two equations. So you have 3 equations, you have 3 variables and you have 3 equations. तो अब आप आंसर निकाल सकते हैं. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है एक तरीके से अगर मैं बोलूं, ठीक है, लेकिन समझना चाहिए आपको, इसका कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है. एंड नंबर सिस्टम के अंदर हम इसको डाल सकते हैं. टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों को यूज करके हमें निकालना क्या है? हमें नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है. तो जैसे कि मैंने कहा ऑप्शन से भी कर सकते हो. अब यहां से यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, यू कैन मेक यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कैसे? सबसे पहले ये जो रिलेशन है इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो. कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूं. लुक एट द बोर्ड. सो यू हैव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10. इन प्लेस ऑफ y I can write x plus z. So it would be x plus z plus z is equal to 10. मतलब 2x plus 2z is equal to 10. 2 कॉमन ले लोगे आप, so it would be 2x plus z is equal to 10, which means x plus z is equal to 5 आ गया. x plus z is equal to 5 आ गया. और दूसरी इक्वेशन है आपके पास z minus x is equal to 1. अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे क्या होगा? आपको x by z की वैल्यू मिल जाएगी. Add the 2 equations, so it will be 2z is equal to 6 और z की वैल्यू कितनी आ गई? 3. तो z की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है कितनी? I'll just write it down. तो z हमारा ओरिजिनल नंबर तो ये लिखा हुआ है मैंने, तो z की वैल्यू निकल के आ गई है 3. हमें पता है z माइनस एक्स 1 होता है, तो अगर z माइनस एक्स 1 है, z की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस एक्स 1 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू 2 है. y की वैल्यू क्या है? द सम ऑफ दीज 2, तो y हमारा हो गया 5. 3 प्लस 2 5. अब अपना ओरिजिनल नंबर आप निकाल लो. ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा? एक्स वाई जेड था ना एक्चुअली, मतलब इसका ब्रेकअप हम ऐसे करते हैं 100x प्लस 10y, बट ओरिजिनल नंबर था हमारा एक्स वाई जेड, यानी कि 2 5 3. और आप यहां पे भी डाल के चेक कर सकते हो, 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5
प्लस 3, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो यू विल गेट द सेम आंसर 253 इज द ओरिजिनल नंबर। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आ जाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे। लाइक क्वेश्चन नंबर 46 आगे चलें, अगर हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड, अगेन नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ध्यान से पढ़ना, इफ अ नंबर obtained by interchanging the digits of the 2 digit number is 18 more than the original number। अब यहां पे 2 डिजिट नंबर है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, तो इसकी डिजिट्स 2 हो गई, द डिजिट्स आर x एंड y। x हो गई आपकी 10th डिजिट, y हो गई यूनिट डिजिट, लेकिन इस नंबर को लिखेंगे कैसे, 10x प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल दे दूं, अगर कोई नंबर है 54 जिसमें x 5 है y 4 है, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, 10 इंटू 5 प्लस 4, तो लिखते हैं हम ऐसे ही है ना, 50 प्लस 4, ठीक है। अब क्या लिखा है, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अब इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं y की जगह x, x की जगह y, तो इट विल बी 10y प्लस x, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। ध्यान से पढ़ना, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, तो बेसिकली इस ओरिजिनल नंबर में अगर आप 18 ऐड करोगे तब आपको ये नंबर मिलेगा। ये इक्वेशन बन गई आपकी, यू हैव फॉर्म द इक्वेशन, तो 10x प्लस y प्लस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब जस्ट टेक दिस टू द अदर साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, 18 इज इक्वल टू 10y माइनस y, 9y माइनस 9x, ठीक है, यहां से 9 कॉमन ले लोगे, 9y minus x is equal to 18, we'll take 9 to the other side, so y minus ये x है not z, y minus x is equal to 2, तो y minus x की वैल्यू आ गई आपकी 2। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, तो x प्लस y का सम आपको दे रखा है 8। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर था, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए थोड़ा सा आसान है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 10x प्लस y, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे, इफ यू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, दोनों को ऐड कर दो तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू निकल के आएगी 5। अब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई 8 होना चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या होगा, 10 इंटू x की वैल्यू है 3 प्लस 5, y की वैल्यू है 5, सो 30 प्लस 5 35, सो आपका ओरिजिनल नंबर है 35, विच इज ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है तो ओरिजिनल नंबर है आपका 35। आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड परसेंटेज चैप्टर से है, जो कि मैथ्स का चैप्टर होता है, तो मैथ्स रीजनिंग दोनों के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है क्वेश्चन। आई कैन नॉट से कि बहुत टफ है क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन को छोड़ के थोड़े जो लेंदी हैं, जैसे कि ये आसान है बहुत क्वेश्चन, द रेशियो, बट यहाँ पे बेसिक नॉलेज होगी तभी आंसर कर पाओगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। और कोर्स में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हमने पढ़ाई हैं, ठीक है, सारे मैथ्स के चैप्टर, सारे रीजनिंग के चैप्टर, उसके अलावा क्वेश्चन भी डिवाइड कर रहे हैं इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैटेगरी में। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। देखो अगर ये रेशियो 5:4 है, किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं। 5:4 का मतलब 5/4 भी होता है। अब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मतलब हम जैसे कोई भी फ्रैक्शन होती है, अगर आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 4 इंटू 25 इज 100, तो 25 इंटू 5 कितना होता है। अभी कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए, इफ यू हैव टू सेव टाइम, बिकॉज टाइम लिमिटेड है आपके पास, तो आपको कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होंगी तो जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। 25 इंटू 5 इज 125%, so option D is the absolutely correct answer. I hope this is very clear. Easy question था, बहुत मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, ये आपका टाइम एंड वर्क का है। P, Q and R are 3 typists who working simultaneously can type 216 pages in 4 hours. 3 लोग हैं, अगर ये साथ में टाइप करेंगे तो 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर देंगे। इसका मतलब, अब एक चीज बताना, अगर 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर देंगे तो 1 घंटे में कितना करेंगे, डिवाइड बाय 4, तो 1 आवर में कितना होगा, 216 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 54 पेजेस। तो 1 घंटे में 54 पेजेस
टाइप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इन वन आवर R कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन Q एज Q कैन टाइप मोर देन P। इसका मतलब क्या है, जितने पेज Q P से ज्यादा टाइप करता है एक घंटे में, उतने ही पेज R Q से ज्यादा टाइप करता है। तो मान लो P जो है एक घंटे में X पेजेस टाइप करता है, मैंने अज्यूम किया X पेजेस करता है, और मैं मान लेता हूं Q जो है वो उससे कितना एक्स्ट्रा कर रहा है, Y एक्स्ट्रा पेजेस टाइप कर रहा है। तो मतलब X प्लस Y, Q इज टाइपिंग Y पेजेस मोर देन P, अज्यूम कर रहा हूं। तो R कितना एक्स्ट्रा टाइप करेगा, क्या लिखा है, एज मैनी पेजेस मोर देन Q एज Q टाइप मोर देन P। तो Y का होगा X प्लस Y प्लस Y, जितना Q एक्स्ट्रा टाइप कर रहा है P से, उतना ही Y एक्स्ट्रा टाइप कर रहा है Q से। तो कितना हो जाएगा आपका X प्लस 2Y। ठीक है, ये तीनों के नंबर ऑफ पेजेस मैंने लिख दिए वेरिएबल की फॉर्म में कि एक घंटे में ये तीनों इंडिविजुअली कितने पेजेस टाइप करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हमें गिवन है कि एक घंटे में तीनों 54 कर रहे हैं। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, ये एक घंटे के पेजेस, ये एक घंटे के पेजेस, ये एक घंटे के पेजेस, इनको प्लस कर दूं, इनका सम कितना आना चाहिए, 54। ठीक है, सो आई कैन राइट पेजेस टाइप बाय P X, देन X प्लस Y, देन प्लस X प्लस 2Y इज इक्वल टू 54। ये इक्वेशन सबको समझ में आती है कि एक घंटे में ये तीनों 54 पेजेस कर रहे हैं। तो इनको मैंने वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, so I can write it like this. Now this will be what, 3x plus 3y is equal to 54. We can take 3 common out, 3 common ले लेंगे, x plus y is equal to 54. We will take 3 to the other side, so 54 divided by 3, 18. So x plus y की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। अब आगे पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 hours, ध्यान से पढ़ना, 5 घंटे में R कैन टाइप एज मैनी पेजेस एज P कैन ड्यूरिंग 7 hours। जितने पेज R 5 घंटे में टाइप कर देगा, उतने पेज P 7 hours में टाइप करेगा। तो अब ध्यान से समझना, P कितना, R कितना कर रहा है एक घंटे में, X प्लस 2Y। तो 5 घंटे में R कितना करेगा, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 hours के उसके पेजेस आ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय P इन 7 hours। अब P एक घंटे में कितना कर रहा है, X पेजेस, तो 7 में कितना करेगा, 7x। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली एक इक्वेशन ये आ गई, बिकॉज 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस भी चाहिए उनकी वैल्यू निकालने के लिए। यहां से आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 7x। तो x को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो 10y इज इक्वल टू 2x, और आपका आ गया x इज इक्वल टू 5y। x की वैल्यू आ गई 5y के बराबर। इस वैल्यू को आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैसे, x की जगह 5y लिख दो, तो 5y प्लस y इज इक्वल टू 18, तो 6y हो गया 18 के बराबर, और y हो गया 3 के बराबर। तो y की वैल्यू 3 है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस y 18 है, y 3 है, तो x हो जाएगा 15। तो x हो गया आपका 15, y की वैल्यू हो गई 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी पेजेस डज ईच वन ऑफ देम टाइप इन 1 hour। तीनों के बताने हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 15, तो p के तो हो गए पेजेस 15, q के कितने हो गए 15 प्लस 3, y की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 18, और r के कितने हो गए, x की वैल्यू 15 और 2y 6, 21, तो 15, 18, 21, ये इन तीनों के नंबर ऑफ पेजेस हो गए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था, इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लीनियर इक्वेशन, और हम कर पा रहे हैं आराम से। ठीक है, आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अगेन ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स में। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ध्यान से पढ़ना, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो जितना टाइम ए को लगेगा, ए को लगता है किसी काम को करने में, उतना ही टाइम बी और सी को लगता है उसी सेम काम को करने में। एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि ए इज फास्टर, ए जल्दी काम कर रहा है, कि दो लोग मिलकर जितना टाइम ले रहे हैं, नहीं, यहां से एक्चुअली अभी उस चीज को हम छोड़ देते हैं कि कौन फास्ट और कौन स्लो है। मतलब डेफिनेटली ये चीज समझ में आ रही है कि ए फास्टर है, लेकिन उसका यूज नहीं है, वो है कि ए फास्टर है, बट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 10 days। अब यहां पे इस क्वेश्चन और क्या लिखा है, सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 50 days। एक काम को अगर ए और बी करेंगे तो उनको लगेंगे 50 दिन, बी और सी को लगेंगे उनको लगेंगे 10 दिन, और सी को लगेंगे 50 दिन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं, बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक मेथड होता है एलसीएम मेथड। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। एलसीएम मेथड में क्या होता है,
तो जो भी हमारा टाइम गिवन होता है तो हम उसमें इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अपना टोटल वर्क निकालने के लिए, मतलब वेरिएबल्स को अवॉइड करने के लिए, बहुत ज्यादा एक्स और वाई ना लेने के लिए हम इसको इजीली एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि ए और बी को लग रहे हैं 10 डेज और सी को लग रहे हैं 50 डेज, ठीक है, ये इनका टाइम है। तो बेसिकली टाइम एंड वर्क का जो आपका चैप्टर होता है वो टाइम और एफिशिएंसी पे बेस्ड होता है, बिकॉज टाइम और एफिशिएंसी जो होते हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है तो आप कम एफिशिएंट हो, और अगर आपको कम टाइम लगता है तो आप ज्यादा एफिशिएंट हो, सिंपल सा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे 10 और 50 का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो वो आएगा 50। तो 50 को, या आप बोल दो 50 यूनिट्स भी बोल सकते हो, ये मैंने अपना टोटल वर्क मैंने अज्यूम कर लिया, मेरा 50 यूनिट्स मेरा टोटल वर्क है। तो अगर मेरी बात समझना, अगर ए और बी को 10 डेज लगते हैं तो इसका मतलब वो कितना काम कर रहे हैं, मेरी बात समझना, 5, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं वो 5 यूनिट्स, तभी आपका 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आएगा। तो एक दिन में ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना हो गया, ए प्लस बी का वन डे वर्क हो गया 5 यूनिट्स, ठीक है। बी, अच्छा सी जो है वो 50 डेज में 50 यूनिट्स बना रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, तो 50 इंटू 1 इज 50। तो सी का वन डे वर्क कितना हो गया, 1 यूनिट। यहां तक समझ में आता है। और हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि जितना टाइम ए को लग रहा है उतना ही टाइम बी और सी को लगता है। तो इसको अगर आप समझो एक तरीके से समझो कि जितना टाइम ए को लग रहा है उतना ही टाइम बी और सी को लग रहा है। मान लो ए को एक्स डेज लग रहे हैं तो बी और सी को भी एक्स डेज लग रहे हैं उस काम को करने में, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी, ठीक है, जब इनको टाइम सेम लग रहा है, बिकॉज टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्स होता है। जैसे कि अब मेरी बात समझो, इनके टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, 1:1, जितना टाइम ए को उतना टाइम बी और सी को टुगेदर। एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्स। लेकिन अगर आप इनवर्स करोगे, 1 क्या है, 1 का मतलब 1/1 है, 1 का मतलब 1/1 है, इसका अगर आप इनवर्स भी लोगे तो भी वो 1/1 ही रहेगा। तो इनका एफिशिएंसी भी 1/1 ही है, मतलब जितना काम ए कर रहा है उतना काम बी और सी कर रहे हैं मिलके उतने ही टाइम में। अब एक बात समझना, आपके पास है a प्लस बी 5, सी है आपके पास, सी की वैल्यू कितनी है 1, और मैंने आपको क्या बोला कि a बी और सी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम ए कर रहा है। अब अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो, तो क्या आएगा, ये तीनों कितना काम करेंगे इन वन डे, वन डे में तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना काम होगा, 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो मिलके काम करेंगे तो 6 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझना, जितना काम ए कर रहा है उतना काम ही बी और सी कर रहा है, मैंने आपको बताया, ठीक है, बराबर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए भी 3 यूनिट्स कर रहा है और बी प्लस सी मिला के भी 3 यूनिट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझना मेरी, सी का आपको ऑलरेडी पता है कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो इस 3 में से 1 यूनिट सी कर रहा है और 2 यूनिट्स बी कर रहा है, तो तीनों के हमारे पास आ गए। ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट्स, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट्स, सी कितना कर रहा है, 1 यूनिट। तो हमें चाहिए रेशियो। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो आप बोलोगे इनकी एफिशिएंसी की रेशियो, तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो है 3:2:1, आप रेशियो भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज इट विल टेक बी टू कंप्लीट द वर्क, बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा पूरा काम खत्म करने में। तो टोटल वर्क है हमारा 50 यूनिट्स, ठीक है, ये बात मुझे ध्यान से समझना, टोटल काम है आपका 50 यूनिट्स, बी कितना कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट्स, तो 50 डिवाइड बाय 2 यूनिट्स आपको देगा नंबर ऑफ डेज विच विल कम आउट टू बी 25 डेज, विच इज योर आंसर। तो ऑप्शन सी 25 डेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा पूरा सेशन, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन 49। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, टाइम एंड वर्क थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, बट एक बार आप समझ लोगे तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 50, एंड टाइम एंड वर्क, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना भी रखी हैं, तो चैनल पे आप जाओगे, क्वांट और रीजनिंग की आपको अलग अलग, मैथ्स और रीजनिंग की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 50, 3 पर्सन्स आर वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी, 3 लोग एक ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 4:3:5, उनकी स्पीड का रेशियो है 4:3:5। आपसे पूछा है उनके टाइम का रेशियो बताओ इन विच दे विल रीच टू बी। अब एक मेरी बात समझना, ये आपका क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, ठीक है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर मान लो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है
जैसे कि इस केस में डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, ए से बी तक ही जाना है, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा तीनों के लिए, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेशन होता है, मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको कम टाइम लगेगा, जिसकी स्पीड कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको जब दे रखा है रेशियो स्पीड का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स। 4 का इनवर्स क्या होता है 1/4, 3 का इनवर्स क्या होता है 1/3, 5 का इनवर्स क्या होता है 1/5। इनवर्स बोल लो या रेसिप्रोकल बोल लो, आपको अब ये रेशियो निकालना है। अब ये रेशियो फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 4, 3 और 5 का एलसीएम निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। इसका एलसीएम होता है 60, 4, 3 और 5 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। तो अगर मुझे इन सबको 60 में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 है, 1/3 है, मतलब मुझे इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो व्हाट आई विल डू, यहां पे भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब 60 बनाना है मुझे एक्चुअली, तो मैं यहां पे करूंगा 15 से मल्टीप्लाई। अगर मुझे इसको 60 बनाना है, 4 को अगर मुझे 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई, 3 को 60 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई। तो जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपकी फ्रैक्शन सेम रहे। देन इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। तो अब आप ये रेशियो निकाल लो, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो बेसिकली। तो दिस विल बी व्हाट 15/60, दिस विल बी व्हाट 20/60, दिस विल बी व्हाट 12/60। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर हटा सकते हो, तो आपका रेशियो बन जाएगा 15:20:12। अब चेक कर लो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन डी दे रखा है। सो दैट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम। स्पीड का रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो हमने निकाल लिया। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलेंगे टू क्वेश्चन नंबर 51। लीला इज मोर स्टूडियस देन किम। तो ये क्वेश्चन है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, या रैंकिंग टेस्ट बोल सकते हो। तो लीला इज मोर स्टूडियस देन किम, लीला इज मोर स्टूडियस देन किम, तो मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया। आगे पढ़ेंगे, किम इज नॉट एज स्टूडियस एज पूजा। मतलब किम उतनी स्टूडियस नहीं है जितनी पूजा है, मतलब पूजा इज मोर स्टूडियस देन किम। इसका मतलब यह है कि पूजा इज मोर स्टूडियस देन किम। ये हमारा सेकंड रिलेशन आ गया। आगे पढ़ेंगे, काजल इज नॉट एज स्टूडियस एज किम और पूजा। तो काजल किम से भी कम स्टूडियस है और पूजा से भी कम स्टूडियस है, मतलब काजल को मैं कहीं यहां पीछे रख सकता हूं, बिकॉज इन दोनों से ही वो कम स्टूडियस है। तो पहले आ गई पूजा, देन आफ्टर दैट किम, देन काजल। अब आपसे पूछा क्या है, हु इज इन द लास्ट डिग्री ऑफ बीइंग स्टूडियस। लास्ट कौन है इन चारों में? तो अगर आप देखोगे तो ये जो लीला है वो भी किम से ज्यादा है, ठीक है। तो लीला कुड बी बिफोर पी ऑल्सो और आफ्टर पी ऑल्सो, बिकॉज लीला इज मोर स्टूडियस देन किम। लेकिन लीला और पूजा को कंपेयर नहीं किया गया, लेकिन हमसे लास्ट पूछ रहे हैं, फर्स्ट नहीं पूछ रहे। तो लास्ट लीस्ट स्टूडियस कौन है? सर लीस्ट स्टूडियस है काजल, ये सबको क्लियरली दिख रहा है। द करेक्ट आंसर हमसे पूछा क्या, लास्ट डिग्री ऑफ बीइंग स्टूडियस, मतलब सबसे कम। द करेक्ट आंसर वुड बी काजल, ऑप्शन नंबर डी, एज यू कैन सी इन दिस ऑर्डर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। तो काफी क्वेश्चन आपको बहुत इजी भी दिख रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बट काफी इजी भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। लाइक ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 52। तो मैथ से इतना डरने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी बेसिक प्रैक्टिस भी कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, क्लैरिटी ले लोगे तो आप कर पाओगे। द टाइम बाय अ वॉच इज 1:30। एक वॉच है उसमें टाइम 1:30 शो हो रहा है। अब मुझे आप लोग बताओ वॉच में क्या होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, देन 3, देन 9। अब 1:30 में क्या होगा, यहाँ पे आपका सपोज 1 है, यहाँ 2 है, तो आर एंड आपका इस तरफ होगा, मिनट हैंड आपका 6 की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ना। इफ द आर पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये आपका बेसिकली डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं आपका आर एंड अगर वेस्ट में पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो डायरेक्शन है इसको वो लोग वेस्ट बोल रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मिनट हैंड आपका कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब आपको एक चीज पता है, सभी को पता होगी कि वेस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट, ठीक है। देन नॉर्थ और साउथ कहां बनाएंगे सर? तो मुझे पता है, मुझे एक चीज पता है, दैट क्या पता है कि वेस्ट जो है, अब वेस्ट, अब देखो यहां पे नॉर्थ नीचे होगा कि नॉर्थ ऊपर होगा, अब ये सोचने वाली बात है। तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स देखो पहले, पॉइंटर्स, तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होगा, सो दिस विल बी साउथ, दिस विल बी साउथ। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शंस आ गई। अब आपको डायरेक्शन निकालनी है मिनट हैंड की। मिनट हैंड अगर आप देखोगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये रहा। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट।
दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कंसेप्चुअल है सारा, मुश्किल नहीं है, बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, द मदर ऑफ 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई हैव डिफरेंट प्रोफेशंस। मदर ऑफ 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स, उनका पांचों की जो 5 मदर्स हैं उन सबका अलग अलग प्रोफेशन है, टीचिंग, म्यूजिक, मेडिसिन, लॉ एंड आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं, अब ये 5 में ऐसे लिख देता हूं, एज मदर, बीज मदर, सी, डी एंड ई। ठीक है, अब मैं लिखूंगा जो भी मुझे गिवन है, जैसे कि एज मदर इज नॉट एन आर्किटेक्ट, नॉट वाली स्टेटमेंट है तो यहां से मैं भी कुछ लिख नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, बट इज मदर इज अ सिंगर, इज मदर इज अ सिंगर। आगे पढ़ेंगे, बीज मदर टीचेस, तो बीज मदर जो है उनका प्रोफेशन हो गया यहां पे टीचिंग। आगे पढ़ेंगे, वाइल सीज मदर प्रैक्टिस मेडिसिन, तो सीज मदर का प्रोफेशन हो गया मेडिसिन। 2 रह गए आपके, डी और ए। अब क्या लिखा है, डीज मदर इज नॉट अ लॉयर, और ए जो है वो आर्किटेक्ट नहीं है। इसका मतलब डी अगर लॉयर नहीं है तो ए हो जाएंगे लॉयर, एज मदर वुड बी लॉयर एंड डीज मदर वुड बी आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्चर में उनका प्रोफेशन है। हुज मदर इज अ लॉयर, तो क्लियरली आप देख सकते हैं एज मदर इज अ लॉयर। तो छोटी सी पजल आप बोल सकते हो, लाइक अ स्मॉल पजल, लेकिन बहुत आसान था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से पूछ रहे हैं, किस डेप्थ में पूछ रहे हैं। तो सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना, ये मत सोचना कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो वो इस साल भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा नहीं हमें करना चाहिए। प्रोजेक्शन हमें तैयारी फुल करनी चाहिए, लेकिन पास्ट ईयर से हमें आइडिया लगता है कि कितने डेप्थ में पूछ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, लाइक क्वेश्चन 54, इफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 8, इस तरीके से कंटिन्यू होगा, मतलब e इज इक्वल टू 9, f इज इक्वल टू 10, इस तरीके से कंटिन्यू होगा। देन द नंबर 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 विल गिव अ वर्ड। तो कह रहे हैं ये जो नंबर्स हैं ये कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, आपको पता है A1 होता है जनरली, अगर प्लेस वैल्यू की बात करूं, A फर्स्ट लेटर है, B सेकंड है, C थर्ड है, D 4 है, आपको पता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे A दे रखा है 5, मतलब सब में +4 कर रखा है, सब में इन्होंने +4 कर दिया। B की प्लेस वैल्यू के लिए +4 कर दिया, C के लिए +4 कर दिया, D के लिए भी +4 कर दिया। तो सभी लेटर्स में ये लोग +4 कर रहे हैं, तो यानी कि नंबर जो है वो 4 एक्स्ट्रा है, उसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू से 4 एक्स्ट्रा है। सभी नंबर्स जो हैं उस पर्टिकुलर लेटर से 4 एक्स्ट्रा हैं। तो क्या मैं इन सभी नंबर्स में से अगर 4 माइनस कर दूं, लिसन टू मी, अगर मैं इन सभी गिवन नंबर्स में से 4 माइनस कर दूं तो क्या मैं लेटर्स तक नहीं पहुंच पाऊंगा इजीली? मतलब अगर मैं एक इजी वे बता रहा हूं करने को, तो आप इसको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लाइक 16, 5, 27, 29, 9, 22 एंड 23। तो अगर सब में से 4 माइनस कर दूंगा तो मैं आंसर पे जल्दी पहुंच जाऊंगा, जैसे कि -4, सब में -4 कर दो पहले। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, देन वी कैन डायरेक्टली राइट द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दैट नंबर। मतलब ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 1, देन दिस इज 23, दिस इज 25, दिस इज 5, दिस इज 18 एंड दिस इज 19। नाउ व्हिच इज द 12th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? इट इज L। फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? A। 23rd कौन सा होता है आपका? T, U with W, W हो गया। 25th होता है आपका Y, 5th होता है आपका E, ठीक है, 18th होता है R और 19th होता है S। सो लॉयर्स है आपका वर्ड विच इज रिप्रेजेंटिंग दीज नंबर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन बी। तो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप वो मेमोराइज कर लेते हो। और उसके लिए बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, जैसे इजोटी में आपको पता चलता है, एक रेफरेंस के लिए होता है कि ई की प्लेस वैल्यू 5, ये वर्ड अगर आप याद कर लो, E5, J10, O15, T20, Y25, फिर इनके रेफरेंस में आप बाकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू सोच सकते हो इजीली। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है जी, इफ एवरी 2 आउट ऑफ 3 रेडीमेड शर्ट्स नीड ऑल्टरेशंस इन द स्लीव्स, हर 3 में से 2 टी शर्ट्स में ऑल्टरेशन चाहिए इन द स्लीव्स। एवरी 3 आउट ऑफ 4 नीड्स ऑल्टरेशन इन द कॉलर, हर 4 में से 3 टी शर्ट जो हैं उनमें ऑल्टरेशन चाहिए कॉलर में। एंड एवरी 4 आउट ऑफ 5 नीडेड इन द बॉडी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी ऑल्टरेशंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 60 शर्ट्स। 60 शर्ट्स में टोटल कितनी ऑल्टरेशंस हो जाएंगे? फिर बात समझना,
2/3 ऑल्ट्रेशन हो रही हैं स्लीव्स में, 3/4 मतलब हर 4 में, हर 4 टी शर्ट में 3 में जरूरत पड़ रही है इन दी कॉलर, और हर 5 में से 4 टी शर्ट में जरूरत पड़ रही है इन दी बॉडी। ये इनकी ऑल्ट्रेशन के बारे में जो है आपको गिवन है। अब यहां पे अब मुझे टोटल ऑल्ट्रेशन कितनी चाहिए, तो टोटल मेरी शर्ट्स हैं 60, तो इन दी स्लीव्स हाउ मेनी ऑल्ट्रेशंस आई नीड फॉर 60 शर्ट्स, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 3 into 20 is 60, so 40 alterations in the sleeves in 60 shirts. Then in the collar, so again multiply by 60, this will come out to be 45. And how many alterations in the body, again multiply by 60, this is 12 and 48, और इन तीनों को प्लस कर दो, तो 40 plus 45 plus 48, this will come out to be 133. So 133 total alterations would be required in 60 shirts. So option C, 133 is the correct answer. Moving on to the next question, question number 56. Question number 56. In a class, 20% of the members own 2 cars each. Percentage का question है आपका from maths. 40% of the remaining members own 3 cars and the remaining members own only 1 car. ध्यान से समझना, अगर टोटल 100% लोग हैं तो क्या बोल रहे हैं, 20% people own 2 cars. 40% ऑफ द रिमेनिंग कितना है, तो 40% ऑफ 80%, रिमेनिंग तो 80% है, अगर 20 हटा दोगे तो रिमेनिंग 80%, तो 40% ऑफ 80%, ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 32%। कैलकुलेट कर लो, 40 into 80 डिवाइड बाय मतलब 100, 40 by 100, 80 by 100 तो निकल जाएगा 32%। तो 32% पीपल ओन 3 कार्स। अब रिमेनिंग कितना बच गया मुझे बताओ, 20 प्लस 32 कितना होता है, 52 माइनस 100, तो रिमेनिंग आपका बच गया 48% पीपल। नाउ 48% पीपल, रिमेनिंग पीपल ओन ओनली 1 कार, इनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें चारों में से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है, पढ़ते हैं। ओनली 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स ओन 3 कार्स, नहीं 3 कार्स तो 32% मेंबर्स ओन कर रहे हैं, 20 नहीं, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड, 48% ऑफ द टोटल मेंबर्स ओन ओनली 1 कार, तो ये बिल्कुल सही है, 48% ऑफ द टोटल मेंबर्स ओन ओनली 1 कार, तो सेकेंड हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड और फोर्थ भी गलत है, बता देता हूं आपको कैसे। 60% ऑफ द टोटल मेंबर्स ओन एटलीस्ट 2 कार्स, एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो कितने लोग एटलीस्ट 2 कार्स ओन कर रहे हैं, तो यू वुड से सर 2 कार्स ओन कर रहे हैं 20% और 2 से ज्यादा वाले 32 है, तो इनका सम हो जाएगा सर 52%। तो 52% पीपल ओन एटलीस्ट 2 कार्स, यहां पे लिखा है 60, तो ये गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। 80% ऑफ द टोटल मेंबर्स ओन एटलीस्ट 1 कार, एटलीस्ट 1 कार किसके पास है, एटलीस्ट तो पूरे 100% के पास है, एक कार तो सबके पास है ही एटलीस्ट, तो ये 80 नहीं है, ये 100 है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 56। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत बेसिक है, करके दिखा देता हूं। अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा मेक अ सम ऑफ 71 रुपीज। द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज, अब यहां पे इक्वेशन बनानी है हमको, सिंपल। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स, इसको मैं मान लेता हूं x, ठीक है। देन नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स को मैं मान लेता हूं y। तो हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 324, तो बेसिकली हमें गिवन है कि x प्लस y है 324। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि जो टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 71। अब बात समझना मेरी ध्यान से, ये जो x नंबर ऑफ कॉइन्स है ये है 20 पैसा, इनकी वैल्यू कितनी होगी, x इंटू 20 पैसा। 20 पैसा मतलब 20/100, अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करूं, बिकॉज मुझे रुपीज में गिवन है वैल्यू, प्लस y कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, तो 25/100, और ये जो सम है ये आपका 71 के बराबर है। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको फिर से लिख देता हूं कि x प्लस y है 324, और ये जो वैल्यू है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, लाइक 20/100 होता है 1/5, तो ये आपका बन जाएगा x/5, एंड दिस विल बी 25/100 होता है आपका 1/4, x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू 71। तो यहां पे इसको लिख देते हैं x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू 71। वी कैन टेक द एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20,
तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, यहाँ पे 5 से करेंगे 5y, और यहाँ पे 71 इंटू 20, सो दिस विल बी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1420। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज वन इक्वेशन। तो यहाँ पे दो इक्वेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस विल बी 4x प्लस 4y, और 324 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, इट वुड बी 1296। अब माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 5y माइनस 4y हो जाएगा y इज इक्वल टू 1420 माइनस 1296, ये आपका निकल के आएगा कितना, 124। तो y की वैल्यू आ गई 124। आपसे y की वैल्यू ही पूछी है, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, जिसको हमने y माना था। तो द आंसर विल बी 124, ऑप्शन बी 124 हो गए आपके 25 पैसा के कॉइन्स। तो हमने निकाला कैसे है, 1420 माइनस 1296। तो आपको समझ में होगा हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अ मैन वियर्स, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत जनरल रीजनिंग का, नॉर्मल रीजनिंग, लॉजिक, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अ मैन वियर्स सॉक्स ऑफ टू कलर्स, एक आदमी दो ही कलर की सॉक्स पहनता है, ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, ही हैज ऑल टुगेदर 20 ब्लैक सॉक्स एंड 20 ब्राउन सॉक्स। टोटल उसके पास जो है कलेक्शन, मतलब नंबर, कलेक्शन नंबर जो 20 ब्लैक सॉक्स हैं, 20 ब्राउन सॉक्स हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, सपोजिंग ही हैज टू टेक आउट द सॉक्स इन द डार्क। अब अंधेरे में अगर उसको सॉक्स निकालनी है तो उसको कलर डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा होगा, है ना। हाउ मेनी मस्ट ही टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज अ मैचिंग पेयर। तो कितनी सॉक्स वो निकाले कि उसे एक पेयर मिल जाए। एक पेयर मतलब दो ब्लैक सॉक्स का पेयर मिल जाए या फिर दो ब्राउन सॉक्स का उसको पेयर मिल जाए। कितनी सॉक्स उसको निकालनी पड़ेंगी ताकि उसको पेयर मिल जाए। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मान लो जो उसने फर्स्ट सॉक निकाली वो ब्लैक आ गई, ठीक है। मान लो उसने सेकंड निकाली वो ब्राउन आ गई। अब जो थर्ड सॉक्स वो निकालेगा वो या तो ब्लैक होगी या तो ब्राउन होगी, या तो ब्लैक होगी या तो ब्राउन होगी। तो उसका एक पेयर तो पूरा हो जाएगा ना, या तो ब्लैक का पेयर पूरा हो जाएगा या फिर ब्राउन का पेयर पूरा हो जाएगा। तो इन 3 सॉक्स, हाउ मेनी सॉक्स ही मस्ट टेक आउट, ही मस्ट टेक आउट 3 सॉक्स इन ऑर्डर टू गेट अ पेयर। तो दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो इतना बेसिक क्वेश्चन था ये, नॉर्मल कॉमन सेंस का, ठीक है। लेकिन इसमें भी कई बार हम गलती कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अब्बा कट अ केक इनटू 2 हाफ्स एंड कट 1 हाफ इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल साइज। एक केक था, उसको हाफ में कट कर दिया सबसे पहले, 2 हाफ्स में, और उसमें क्या किया, एक हाफ को और फर्दर स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया। ये जो एक हाफ था इसको और डिवाइड कर दिया इक्वल नंबर ऑफ पीसेस में। क्या लिखा है, पीसेस ऑफ इक्वल साइज, और अदर हाफ को डिवाइड नहीं किया। आगे पढ़ो। तो ये आपका बेसिक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, या बेसिक नॉर्मल फ्रैक्शन या रेशियो का क्वेश्चन है। ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज 20 ग्राम्स इन वेट। ये जो छोटे पीसेस हैं इन सभी का वेट 20 ग्राम ईच है, ठीक है। ईच ऑफ द पीस वेट्स 20 ग्राम। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। इफ शी हैज 7 पीसेस ऑफ द केक इन ऑल, कह रहे हैं उसके पास टोटल 7 पीसेस हैं। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 7 पीसेस कैसे होंगे, 6 तो होंगे स्मॉल पीसेस, जो आपने हाफ केक का 6 स्मॉल पीसेस किए होंगे, और एक आपके पास ये अदर हाफ पीस होगा। तो एक तो होगा आपके पास 6 स्मॉल पीस एंड 1 लार्ज पीस, और ये जो 6 स्मॉल पीस है ये हाफ केक के बराबर है, और ये जो 1 लार्ज पीस है ये भी हाफ केक के बराबर है, बिकॉज आपने हाफ केक के ही 6 पीस करे होंगे। तो टोटल आपके पास 7 पीस हो गए। तो आपसे पूछा हाउ हैवी वॉज द केक, केक का ओरिजिनल वेट कितना था, पूरे केक का। अब ध्यान से मेरी बात समझना, एक स्मॉल पीस का वेट है 20 ग्राम, तो 6 पीसेस का वेट कितना होगा, 20 ग्राम इंटू 6, 120 ग्राम। तो बेसिकली आधे केक का वेट 120 ग्राम हो गया, रिमेनिंग हाफ का वेट भी 120 ग्राम होगा। तो टोटल केक का वेट कितना हो गया भाई, 120 प्लस 120 इज इक्वल टू सर 240 ग्राम टोटल केक का वेट हो गया। दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी है सारे, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में आया था वो मैं आपको और दिखा देता हूं बिफोर वी क्लोज द क्लास। आई होप सभी को मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 60, एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड्स विथ ईच अदर वंस। एक कॉन्फ्रेंस में 10 लोग थे,
उन सभी ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक करे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर ऑल टुगेदर। तो ये आपका क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जो मैथ्स का एक टॉपिक होता है। ठीक है, कितने टोटल हैंडशेक्स कितने हुए उस कॉन्फ्रेंस में। अब एक पहले नॉर्मल आपको मैं फॉर्मूले से वही बताऊंगा, इसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कॉमन सेंस से भी अगर आप समझो, देयर आर 10 पीपल, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ऐसे 10 लोग हैं। मेरी बात समझना, पहले पर्सन ने 9 लोगों के साथ हैंडशेक किया होगा, दूसरे पर्सन ने भी 9 लोगों के साथ किया होगा, बिकॉज खुद के साथ हैंडशेक थोड़ी ना करेगा। तो हर एक आदमी ने 9 लोगों के साथ हैंडशेक किया होगा, और टोटल लोग कितने हैं 10। तो आप बोलोगे सर 9 को 10 बार ऐड करना है, सर 90 हैंडशेक्स हुए होंगे। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन आप एक गलती कर रहे हो, 90 हैंडशेक्स हुए होंगे, लेकिन जब 2 लोग हाथ मिला रहे हैं तो वो हम इस मान लो 1 और 2 ने हाथ मिलाया, तो हमने वो 1 में भी काउंट कर लिया, वो हमने 2 में भी काउंट कर लिया। तो हर एक हैंडशेक 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 45 हैंडशेक्स हुए होंगे, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूं। तो 10 लोग हैं और एक बारी में 2 लोग, मतलब एक हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए, एक हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए, 2 लोग हैंडशेक करेंगे। तो 10C2 का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, सो 8 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 into 3 into 2 into 1। तो उस नंबर से जो भी प्रीसीडिंग नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये अब क्या होता है, आपको फैक्टोरियल समझना पड़ेगा इसके लिए। सो 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो यहां से ये कट हो जाएगा। बेसिकली आपके पास जब इसको कट करोगे तो आपके पास बच जाएगा ये 10 into 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 10 into 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, क्यों, 2 फैक्टोरियल होता है आपका 2 into 1 इज इक्वल टू 2। तो 10 into 9 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आपका 45 ही आएगा, विच एवर मेथड यू यूज। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, फास्टर है, फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर है। सो वी हैव डिस्कस्ड गाइस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग बीइंग आस्क्ड इन PU LLB 2023। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा। अपनी प्रिपरेशन ऑल्दो आप लोग कर ही रहे होगे, बट और बेटर आप इसको समझ के कर सकते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी भी जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपके आते रहेंगे उन सभी में भी आपके नॉलेज काम आएगी, बिकॉज लेवल और पैटर्न आपको समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बाकी एज आई टोल्ड यू, जो भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको जानना है तो वेबसाइट पे जाइए www.lawdigest.in। और बाकी आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव मी सजेशन फीडबैक अबाउट दिस वीडियो below in the comment section. So thank you very much guys, keep preparing hard, goodbye and Jai Hind.